Dr. Das, first of all, thank you very much for inviting me and my colleagues and our group for sharing our thoughts on seaweed related activities as part of the underwater domain awareness, use of oceans, whichever way you want to look at it. So, thank you very much for inviting us. Uh, just a brief background to our company and the philosophy that we follow. We are one of the earliest chemical companies of India, born before the independence. So we were born in 1941 in Mumbai. Uh, at that time, there were hardly any chemical companies. So we were one of the few that were there. So we are an 80-year-old company. My family, my elders, and even their elders, they drew a lot of inspiration from our ancient wisdom, also ancient personalities, whether Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, our scriptures, the Gita, etc. Uh, and we have always believed that yes, business is fine, it has to be economically viable, but more than just making money, business also has to have a purpose, which is a purpose larger than just making money and giving the best returns to the shareholders, investors, etc. So giving back to the society, being in tune with the nature has always been part of our approach to life. Just to give two examples, uh, Gandhiji had given the concept of what is known as trusteeship, that all the assets, all the money, all the things that you are sitting on is not your own. The society contributes quite a lot to creation of those assets, creation of those that wealth. So you owe it back to the society to give back. So what is known today as CSR, corporate social responsibility, our family, our company, our group has been following for last more than 50 years. Giving back has comes very naturally to us. Also, give back what? So, as a technology based company, we believe that there are good technical solutions available in many areas. Chemistry and chemical technology has been our forte and our core expertise. So, of course, we have used chemistry. But if you look at chemistry, it is also one of the technologies or one of the technical disciplines. So, use of technology in general for doing good for the society, for helping to find solutions, to create opportunities out of whatever is available, including what we call waste. All this has been very much part of our philosophy. So, just to give a few examples of how we have worked, uh, the company was born as a specialty chemical company. The first product was made out of a metallic waste, zinc chloride. Then in 1955, 56, 57, when India was discovering that we were food wise, we were extremely short. We were politically independent, but we did not have food of our own. We were dependent on charity food coming from USA. So India decided to go for what is known as green revolution. That is, we must be food self-sufficient. So use water, use fertilizer, use pesticide, use whatever, and good varieties of seeds, but make India the first Indian company to start making chemical pesticides. At that time, pesticides were very much respected. Today, the word pesticide does not always generate a good feeling. I know that. And we also traveled that journey for more than 50 years. And we are now not in pesticides so much, but we continue to be a chemical company. That was one example of how we contributed to the green revolution. Similarly, as the world is discovering many nature derived problem or how we are damaging nature, so we need to be responsible towards nature, towards environment. So our company was the first company in India to start converting the what we generate as the solid waste in the cities and convert the organic part of that into compost. What is compost? It's a natural fertilizer. It's a organic manure, which when you put back into the soil, you put back carbon into the soil, and any good soil has to have a certain amount of carbon. It must have right type of beneficial microbes.
So when you give compost back to the soil becomes healthy physically, chemically, biologically. And in the bargain, you also solve the problem of the dirty cities. So like that, you can combine the technology for solving a problem, one of the city, one of the agriculture. Similarly, our group company also works on converting sewage water into good quality water, including potable water. So this can also be done. So there are many things that the society's problems are, and we need to look at them and see if we can contribute in some manner to solving the problem. Now, coming to the this particular session and what is it going to focus on, I would say one of the problems that has occurred in the last 15, 20 years and which is now becoming more and more acute is the problem of climate change. And once you have climate change, then you have n number of problems flowing out of that. Either shortage of water or too much water coming in just 1 or 2 days' time. So flooding, disasters, cyclones, tsunamis, all that occurs because of a lot of destruction takes place, a lot of uncertainty comes. So climate change, it has been like a slow poison. We know that it is there, it is not good, but okay, वो और किसका प्रॉब्लम है, मेरे पैर के नीचे नहीं है, इसके लिए ठीक है, बट नाउ इट इज कमिंग अंडर अवर ओन फीट. तो अभी ऐसा नहीं है कि वो और कहीं है. All of us owe a responsibility for being a creator of the climate change and also the solution provider. So all of us have to become responsible people who, as we were discussing on the lunch table, by all means have a comfortable life. By all means use what you need, buy what you need, but don't overbuy. Not because somebody tells you buy one get one free, or that I will आपके पास पैसा नहीं है तो चिंता मत करो, मैं आपको EMI दे दूंगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह बैंक वाले बोलेंगे. डोंट फॉल फॉर दैट. जस्ट बी आस्क योरसेल्फ मुझे क्या चाहिए, मेरी ज़रूरत क्या है. हमारे लंच टेबल के ऊपर बहुत अच्छा एक कंपटीशन हो रहा था अभी. मुडगल साहब ने कहा कि मैं ये जो जैकेट पहना हूँ ना, वो कभी लिया था, 20 साल पुराना है. तो हमारे टेबल पे एक लेडी बैठी थी, उन्होंने बोला देखो ये मैं तो 5 साल के पहले नए कपड़े नहीं खरीदती हूँ. तो मैं तो जीत गया. मैंने बोला ये मैं जो ट्राउज़र पहना हूँ ना, वो मैंने 1987 में लिया था अमेरिका में, अभी भी चल रहा है. अभी 87 से अभी कितने साल हुए आप लोग गिन लीजिए. तो इस तरह से जो ज़रूरत है ज़रूर लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, किसी ने कहा कि आप ये खरीदो तो मैं आपको कुछ दूंगा, इसके लिए मत खरीदो, खुद जिम्मेवार बनो. तो ये चीज़ है. तो अभी क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ है, तो हमारी जो है कि इररिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की पैटर्न, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, बाइंग, वेदर वी नीड इट और नॉट. तो जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं, तो पहला रिवॉल्यूशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम इतना एनर्जी यूज़ करते हैं, इतनी चीज़ें खाम खा बनाते हैं और उसको खाम खा लेते हैं, यूज़ नहीं करते हैं फिर भी लेते हैं वगैरह. और गाड़ी और इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, एसी वगैरह. तो पूरी दुनिया को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है. लेकिन समझो सब लोग बहुत अच्छे हो गए, कल से बिल्कुल जनरेट करना बंद कर दे, खाम खा यूज़ करना, तो CO2 जनरेशन बंद हो जाएगा. लेकिन जितना वातावरण के अंदर ऑलरेडी गया है, जितना ओशन के अंदर ऑलरेडी गया है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से जितना डैमेज हो रहा है, उसको निकालना भी पड़ेगा. तो एक ये बात हो गई. नहीं तो इसके वजह से जो डैमेज होता है वो तो होते रहेगा. दूसरा, एक बाजू से आप निकालो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, लेकिन साथ साथ में दूसरी ओर आप और जनरेट करते जाओ और बेचते जाओ, तो ये तो हिसाब अच्छा नहीं होगा. तो वी हैव टू ऑल्सो लर्न हाउ टू रिड्यूस द कंजम्पशन, आई मीन जनरेशन ऑफ CO2 एंड सेंडिंग इट इन द एयर. तो दोनों को करने की ज़रूरत है. तो जो पहली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी है, जो वातावरण में है, जो दरिया में है, उसको निकालने की ज़रूरत है.
तो अभी जैसे सुबह के सेशन में जो बात हो रही थी, तो उसकी थोड़ी मैं आगे बात करूं कि पूरी दुनिया में जितना पृथ्वी के ऊपर जितना लैंड मास है वो 25% है, और बाकी 75%, 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशंस। ओशंस का हम लोगों ने बहुत कम यूज किया है, तो हार्डली शिपिंग के लिए या तो अपने फिशिंग के लिए वगैरह यूज करते हैं, लेकिन उसका जितना उपयोग हो सकता है वो करने की जरूरत है। और दूसरी बाजू देखें तो दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब सबको मिनिमम भी खाना खाए तो भी खाने के लिए जो हमको खाना लगेगा, हमारे जो एनिमल्स है उनको खिलाने के लिए जो घास लगेगा, जो हमको फर्टिलाइजर लगेगा, जो तो लैंड के ऊपर इतना नहीं पैदा हो सकता है, क्योंकि लैंड मास इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। और ओशियंस जो है वो अनयूटिलाइज रिसोर्स है। तो ओशियन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे खींचना, और ओशियन को लेके ऐसा एक जिसको ब्लू इकोनॉमी, जिसका मुडगल साहब ने जो बहुत अच्छी तरह से बताया, और वो दो मेन जो कमिटीज है, एक तो प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी उनकी ब्लू इकोनॉमी कमेटी में है, और फिक्की की जो टास्क फोर्स है उसमें भी हुआ है। तो ब्लू इकोनॉमी जैसे हमारे भारत में एक बहुत अच्छी गर्व की बात है कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन भी किया। हमारे पास फूड की शॉर्टेज थी, तो हम फूड सरप्लस हो गए। बाद में जिसको वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, तो दूध या तो एनिमल बेस्ड जो इंडस्ट्री इकोनॉमी, तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन और दूध के डेरिवेटिव्स बनाने वाला देश तो भारत बन गया है। इसी तरह से ब्लू इकोनॉमी की बातें तो चल रही है, लेकिन भारत एक इसमें लीडर हो सकता है कि ब्लू इकोनॉमी खाली बातें मत करो, ओशियन का यूज करके अच्छी तरह से यूज करके इकोनॉमी भी बढ़ाओ, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी साथ में रखो, इकोलॉजी को भी भूल मत जाओ, और जिसको सर्कुलर इकोनॉमी बोल सकते ये भी करो। तो ये ओशियन का कैसे यूज करना, ये भी एक करना पड़ेगा। तो इसमें जब हम ये सोच रहे थे कि ये ब्लू इकोनॉमी की ओर जाना है या तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, तो कैसे निकालना, तो इसमें हम ये सीवीड का एक रेफरेंस आया लगभग 5-7 साल पहले। तो हमने बोला कि नहीं, ये एक अच्छी बात लगती है, क्योंकि सीवीड यानी वेजिटेशन है। कोई भी वेजिटेशन, कोई भी क्रॉप उगता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए, उसको पानी चाहिए। ये तीन चीज़ें मिले तो वो हो सकता है। और तो सीवीड एक ऐसी चीज़ है कि जो दरिया में उगती है तो ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रेश पानी की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आपको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा है, और इसका ग्रोथ इतना फास्ट है कि आप ज़मीन के ऊपर कोई भी क्रॉप उगाओ उससे 5 गुना 6 गुना उसका ग्रोथ है। जैसे एक टिपिकल बात करूं तो टिपिकल इसकी जो वेराइटीज़ होती है, कप्पा फाइकस है, बाकी उल्वा है वगैरह, तो लगभग 45 डेज के अंदर उसकी एक पूरी क्रॉप साइकिल पूरी हो जाती है। आपने आप अभी सीड डाला, 45 के बाद में उसको आप हार्वेस्ट कर लो, दूसरी बार डालो, फिर से 45 दिन हुए आप निकाल लो। तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। सनलाइट तो हमारे यहाँ काफ़ी है। जैसे मुडगल साहब ने भी बताया कि अभी एक रियलाइजेशन इंडिया में आ रहा है कि हमारी 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी कोस्ट लाइन है। हमारे 9 स्टेट्स हैं इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स बोले जा सकते हैं। गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक जाओ तो 9 स्टेट्स हैं जो जिसमें कोस्ट इज अवेलेबल, सी वाटर इज अवेलेबल। और यहाँ हजारों लाखों फिशरमैन है, कोस्टल कम्युनिटीज है जिसका दरिया के साथ एक संबंध है। तो ये सब हमारी जिसको पूंजी बोल सकते हैं वो पूंजी है। और ये क्लाइमेट चेंज ये हम हमारा सबका प्रॉब्लम है, इंडिया का भी प्रॉब्लम है, पूरे भारत पूरे देश का भी, पूरे दुनिया का भी प्रॉब्लम है। तो भारत एक बड़ा अच्छा इसमें योगदान दे सकता है कि हमारी जो कोस्टल एरिया है, हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है, उनको लेके हम इसको ओशियंस को यूज़ करें, ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करें, और साथ साथ में ब्लू इकोनॉमी इतना ही नहीं, इंक्लूसिव इकोनॉमी जिसको बोल सकते हैं
कि फिशरमैन जो उसमें से काफ़ी परसेंटेज ऐसा होता है कि जिनके पास कोई ज़्यादा आमदनी का साधन नहीं होता है। वो जितना आज मच्छी पकड़ के ले आया मैं और बेचा शाम को, मुझे 15-20 रुपया 25 रुपया मिल गया, तो वो पुअर भी है, उनको इनकम की ज़रूरत भी है। तो हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि सीवीड्स, तो सीवीड करो तो आपको फिशिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिश भी उगाओ और हार्वेस्ट करो और साथ में ये भी लो। जैसे अमूल का, जैसे मैंने वाइट डेयरी रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन की बात की, आज आज अमूल का मॉडल क्या है, या तो इंडिया का डेयरी का मॉडल क्या है कि आप एक किसान है, आपके पास ज़मीन है, आप कोई भी क्रॉप उगाते हो तो घास भी एक क्रॉप है। थोड़े से एरिया में आप थोड़ा घास भी उगाओ, 2 एनिमल 4 एनिमल रखो जो आपको दूध देगा, और दूध तो लगभग पूरे साल में 250 दिन तक आपको दूध मिलता है। क्रॉप में खेती में तो क्या होता है कि आप आज डालो, 4 महीना 6 महीना के बाद में आपको क्रॉप मिलेगा, तभी उसका पैसा मिलेगा। तब तक आप उसमें लेबर लगाते जाओ, फर्टिलाइजर डालते जाओ, पेस्टिसाइड डालते जाओ, तो आपको पहले कॉस्ट और बाद में इनकम। पहले ये डेयरी का इंडस्ट्री ऐसा है, और दोनों एक ही रिसोर्स में से हो सकते हैं। एक ही जमीन जो क्रॉप भी उगा सकती है, खेती भी हो सकती है, और आप डेयरी भी कर सकते हैं। उसी तरह से फिशरमैन को फिशिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो फिशिंग करता रहे और साथ साथ में सीवीड भी उगाता रहे। तो जो इसको IMTA करके बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मैरीटाइम एग्री एक्वाकल्चर, यानी दोनों करो। तो ऐसी टाइप का अगर आप करो तो आपको आमदनी भी बढ़ेगी, और ये साथ साथ में CO2 भी खींचेगा, और साथ साथ में आपको आमदनी का साधन भी मिलेगा। और लास्ट बात कर दूं कि ये इतना बड़ा अच्छा एक रिसोर्स है सीवीड, तो उसमें से आपको क्या नहीं मिलता ये सवाल पूछना ज़्यादा उचित है, रादर देन क्या मिलता है। उसमें से आपको अपना खुद का खाना मिल सकता है, आपके जो एनिमल्स होते हैं उसको खिलाने के लिए जो चाहिए वो आहार भी मिल सकता है, उसमें से फर्टिलाइज़र मिल सकता है, उसमें से फ्यूल मिल सकता है, उसमें से बायोप्लास्टिक्स मिल सकता है। तो इतनी चीज़ होती है कि उसका क्या करना, ये एक तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारी जितनी इमेजिनेशन हम बढ़ा सकते हैं तो उतना उसका यूजेज हो सकता है। तो ये काफ़ी कुछ हो सकता है, बहुत जिसको विन 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 बोल सकते हैं, कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इसमें खराब है, सब अच्छा है। तो इससे सब अच्छाई के लिए इसको करना चाहिए। तो मैं ये थोड़ा ब्रोशर जो है हमारा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी तो है, लेकिन कंपनी में हमेशा हम माने हैं कि कंपनी का एक पर्पस होना चाहिए विच इज़ हायर देन जस्ट मेकिंग प्रॉफिट और मेकिंग मनी। तो जैसे हमने काफ़ी ऐसे नेशनलिस्टिक काम किए हैं, सोसाइटी के लिए किए हैं, तो हम 3 कंपनियां मिलके ये सीवीड का काम अभी कर रहे हैं। एक हमारी कंपनी है एक्सेल इंडस्ट्रीज, दूसरी पीडीलाइट, जिसके आप फेविकॉल सब पहचानते होंगे, तो फेविकॉल बनाने वाली कंपनी जो पीडीलाइट है वो भी है हमारे साथ में, और तीसरी कंपनी है ममता ग्रुप, अहमदाबाद में है, वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी में ज़्यादा है। तो हम तीनों मिलके ये एक अच्छा काम करने के लिए जुड़े हैं। तो हमारा R&D भी हो रहा है, एक सर करके हमारी संस्था है उसमें, और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी जब भी ज़रूरत पड़े तो करेंगे। तो ये एक जिसको प्रीएम्बल बोल सकते हैं कि सीवीड क्यों, कैसे, हम कैसे वातावरण में जी रहे हैं, उसके बारे में क्या करना चाहिए। सिर्फ चिंता करने से नहीं चलेगा, लेकिन चिंता के बाद में सोल्यूशन भी ढूंढो। तो सीवीड एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, जो ब्लू इकोनॉमी में फिट होता है, जो इंक्लूसिव इकोनॉमी में फिट होता है। और जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत ने किया है, वाइट रिवॉल्यूशन किया है, ब्लू रिवॉल्यूशन भी हम करके दिखाएंगे, ऐसी मेरी पूरी खातरी है। सो थैंक यू वेरी मच।